चलिए डन। क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं जरा कैपिलरी राइज एंड फॉल के। चलिए राइट डाउन वन क्वेश्चन। If diameter of capillary tube is 1 mm, the capillary rise is 3 centimeter. What will be the what capillary rise when diameter changes to 0.2 mm. 0.2 mm. (29°) not 24 beta. (29°). Yes, Katit. Sir, is mercury contact the angle between exactly which part? Theta is 132°. Contact angle. Yes, Amarjyoti, correct. Yes, Siddharth, Shivam, correct. सही है बेटा। देखिए सीधे फॉर्मूला तो है 4 सिग्मा कॉस थीटा स्मॉल wd, बट यहां पर क्या है, h इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d. ओके, h इज indirectly proportional to d.
तो इनिशियल डाया क्या था बेटा, 1 था और ये 3 था। सिंपल है ना, इससे ज्यादा मैं कुछ बताऊंगा नहीं लॉजिक के अलावा। अब मैंने उसको 1/5 कर दिया 0.2, तो ये 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, दैट विल बी योर व्हाट, 15 सेंटीमीटर, दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, इससे ज्यादा मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। H1 डिवाइडेड बाई H2, D2 डिवाइडेड बाई D1, दैट्स इट। हाँ या ना, सेंटीमीटर में ही बता दीजिए, दैट यू विल गेट 15 सेंटीमीटर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैज गिवन द सॉल्यूशन ऑलरेडी, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे बेटा। इसमें इससे ज्यादा नहीं है अरशद, है ना मेरे पास कुछ बताने को। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड हैं। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कैपिलरी राइज of pure water when a clean glass tube of 1 mm diameter immersed in at 20 डिग्री सेल्सियस। करिए जरा ट्राई। Yes, theta is equal to that, already you have data. Pure water, clean glass tube, theta is equal to 0. अरे थीटा 0 है, cos थीटा cos 0 1 होता है बेटा। फटाफट आंसर आ रहे तेजा, शिवम, अवनीत, what you people are giving answer directly 0. Is it? Is it? Yes, approximate answer that you should give in meter or in mm, whatever. Yes, Prince, very good, correct. Wrong, Shubham. 0 is not the answer. Theta is 0. Sigma that I have already given you for the water, that is 0.073. Yes, Srinath? Already I have given to all of you. Sigma cos theta small wd. Pure water, clean glass tube, theta is equal to 0, so cos 0
is equal to 1. So H is equal to 4 and sigma that you know 0.0736 Newton per meter. So 4 multiplied by 0.0736 divided by small w is what beta? 9810 Newton. Okay, that is your in Newton, so that will be 9810. Now D is what? D is given to you 1 mm, so 1 cross 1 10 raised to power minus 3. Yes or no? So H is equal to what you will get? Approximately 0.0292 or approximately what I can say 30 mm. All of you are getting this or not? Let me know. 298. चेक करिए तो इतना. All of you are getting this or not? Yes, approximately 30 mm that you will get. ऐसे क्वेश्चन भी that you may face in your examination. Okay, Teja, Yarashai Kumar. Yes, you people should be interactive. Next and last property, सिग्मा कैसे ले लिए? राजन, आप होश में है? सिग्मा कैसे ले लिए? ऑलरेडी फॉर वाटर वी नो 0.0736. ये याद ही रख करके चलना है बेटा ना. कैसे ले लिए नहीं, ये याद होना चाहिए. मैंने जब दे रहा था प्रॉपर्टी कल ही मैंने बोल दिया था कि दैट यू शुड रिमेंबर. ठीक है. Now next property is what? Vapor pressure. Vapor pressure. Thermodynamic equilibrium in closed system. थर्मोडायनेमिक. यस अवनीत, वाटर के लिए यही होता है. मैंने अब देखो ऐसी चीजें जो आप लोग पूछते हैं ना कि ये हमेशा लेना, मैंने पहले ही बताया है. टाइम वेस्ट नहीं करना है. ठीक है. Now let we come to the vapor pressure. Now let we come to the vapor pressure. Thermodynamic equilibrium in the closed system. Let we take one closed container. Let me take one closed container. Let me take one closed container and water is filled in it partially. That is your what? Free surface of the water. That is your what? Free surface of the water. Here that what you are having water and here that what we are having air. वाटर के मॉलिक्यूल्स का कुछ एनर्जी लेवल होगा या एयर
आपका वाटर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्सेस दे रही होगी। दोनों चीज पॉसिबल है, बोथ थिंग्स आर पॉसिबल। एयर is giving the attraction forces to water molecules, or water molecules are having their own energy level by which some molecules are coming outside, some molecules are coming outside the liquid surface. Some molecules are coming outside the liquid surface. Getting me or not? Some molecules are coming outside the liquid surface. और जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड सरफेस से बाहर आना स्टार्ट होते हैं, तो ये जो वेपर ड्राई है अभी या एयर है, उसमें कुछ मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, तो वो कुछ पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट करता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर से, क्लोज्ड कंटेनर है बेटा, पहली बात तो क्लोज सिस्टम के लिए यही मैं बात कर रहा हूं। हाँ प्रवीण, थोड़ा सा जान लीजिए, जरूरी है, एक दो जगह पूछा गया है, ठीक है? 5 मिनट का ही टॉपिक है, सुन लीजिए, ज्ञान कभी कम नहीं होगा। मॉलिक्यूल्स निकल करके बाहर आते जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बाहर निकल करके आ रहे हैं, वेपर, एयर में मॉइस्चर कंटेंट, दैट इज अवर वर्ड वेपर। अब ये पार्शियली प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट करता है वाटर के फ्री सरफेस पर। थोड़ा और प्रेशर इंक्रीज हुआ, इन द सेंस पहले एयर इतना प्रेशर नहीं डाल रहा था, नॉर्मल कंडीशन में था, बट मॉइस्चर मींस मॉलिक्यूल्स निकल करके बाहर आए। अब वेपर पार्शियल लेवल पर प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट किया, तो प्रेशर और इंक्रीज हुआ, तो और मॉलिक्यूल्स निकल करके आना स्टार्ट हुए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मॉलिक्यूल्स निकल करके बाहर आ रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज होते जा रहा है। अब यहां पर एयर की जगह जो वेपर है बेटा, क्योंकि अर्लियर एयर था, नाउ इट इज वेपर बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। अब ये वेपर का प्रेशर क्या होते जा रहा है, जो लिक्विड पर, वाटर पर एक्सर्ट कर रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, बट वेपर का खुद का भी प्रेशर इंक्रीज होते जा रहा है। तो प्रेशर इंक्रीज होने से जो मॉइस्चर वेपर में है, उस मॉइस्चर का कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाता है। उस वेपर का, उस मॉइस्चर का जो वेपर में है, उसका भी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। इन द सेंस यहां से कुछ मॉलिक्यूल्स निकल करके बाहर आ रहे हैं, और यहां से कुछ ड्रॉपलेट्स वापस वाटर में जा रही है। मॉलिक्यूल्स ज्यादा निकल करके बाहर आए, प्रेशर इंक्रीज होते जा रहा है, मॉलिक्यूल्स निकल करके बाहर आ रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज होते जा रहा है, तो कंडेंसेशन भी बढ़ते जा रहा है। इवेपोरेशन प्रेशर के साथ बढ़ते जा रहा है, और साथ ही साथ कंडेंसेशन भी इंक्रीज होते जा रहा है। एक ऐसी सिचुएशन आएगी प्रेशर इंक्रीज होते होते कि जो वाटर से मॉलिक्यूल्स निकल करके बाहर आ रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल्स निकल करके बाहर आ रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स वेपर से लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में कंडेंसेशन हो करके वाटर में वापस जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड योर सैचुरेशन कंडीशन। दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन कंडीशन। इससे ज्यादा उसमें मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स निकल करके यहां सरफेस से बाहर आ रहे हैं, उतना ड्रॉपलेट के फॉर्म में कंडेंसेशन हो करके मॉलिक्यूल्स वापस लिक्विड में जाते जा रहे हैं। तो अब ये साइकिल पूरा मेंटेन हो गया है, एंड दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज
saturation temperature at particular pressure, and whatever pressure is exerted by the vapor, at the equilibrium situation means जितने मॉलिक्यूल्स निकल करके बाहर आ रहे हैं उतना ही वापस रिटर्न चले जा रहे हैं, that is called as vapor pressure. That partial pressure, अधूरा हो, आंशिक, that partial pressure is called as vapor pressure when at the saturation condition. सेम प्रेशर पर मैं टेम्परेचर कम कर देता हूं, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपका जो कंडेंसेशन है वो कम हो जाएगा, या मैं यहां पर बोल सकता हूं जिस लिक्विड का हायर वेपर प्रेशर है, ये जरा ध्यान से सुनिएगा, जिस लिक्विड का हायर वेपर प्रेशर है, जिस लिक्विड का हायर वेपर प्रेशर है वो लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल होता है। जिस लिक्विड का ज्यादा वेपर प्रेशर है, जैसे पेट्रोल, उसको कंटेनर में क्लोज करके रखिए, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? हायर होगा। वेपर प्रेशर हायर होना इन द सेंस वो इजीली वोलेटाइल मतलब वो इजीली उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, हिंदी में मैं बोलूं तो समझ में है। जैसे ही कंटेनर को ओपन करेंगे ज्यादा इजीली उसकी स्मेल क्यों आती है? क्योंकि वो वोलेटाइल मटेरियल है। समझ में आया क्या? पेट्रोल, डीजल उससे कम, केरोसिन उससे कम। समझ में आया? तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर, खुद ही अपना प्रेशर जनरेट कर लेते हैं, क्लोज कंटेनर में बना लेते हैं प्रेशर, वेपर प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं, वो मटेरियल, वो लिक्विड्स आपके क्या है? ज्यादा वोलेटाइल है। बॉइलिंग इज ऑल्सो सिमिलर टू द वेपर प्रेशर। आप सेम टेम्परेचर के लिए प्रेशर ड्रॉप करिए, वेपर का बनना स्टार्ट हो जाएगा। सेम टेम्परेचर के लिए आप प्रेशर को ड्रॉप करिए, वेपर का बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो बॉइलिंग या तो प्रेशर सेम रख करके टेम्परेचर बढ़ाया जाए, या टेम्परेचर सेम रख करके प्रेशर डिक्रीज कर दीजिए, वहां भी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब उस समय वाटर वोलेटाइल होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर बनना उसका स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज व्हाट वेपर प्रेशर एक प्रॉपर्टी है। अब यहां पर जो मरकरी है, देखिए ये सभी के काम का है ना, सिविल वालों के लिए क्वेश्चन आए हुए। जो मरकरी है उसका वेपर प्रेशर, जो मरकरी है उसका वेपर प्रेशर बहुत लो होता है। मींस ये इजीली वोलेटाइल नहीं है, मरकरी का वेपर प्रेशर बहुत लोअर होता है, वोलेटाइल नहीं है। वोलेटाइल नहीं है बेटा, तो इसलिए मैं इसे मैनोमेट्री में यूज करता हूं। समझ में आया? इसलिए इसे मैं मैनोमेट्री में यूज करता हूं। अदरवाइज खुद का प्रेशर एक्सर्ट करने लगेगा तो मेजरमेंट में एरर आने के चांसेस नहीं, वो चांसेस हमें नहीं लेना है। तो मरकरी का वेपर प्रेशर क्या है बेटा? बहुत कम होता है, इसलिए हम उसे मैनोमेट्री में एज ए मैनोमेट्रिक लिक्विड यूज करते हैं। ठीक है, जो भी आपको यहां से बोर्ड से लेना है फटाफट लीजिए, और कुछ थ्योरी लिख करके हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे।
vaporization takes place, write down, write down, when liquid molecule exposed to air when liquid molecule exposed to air or gaseous atmosphere at the free surface vaporization take place. Vaporization takes place at the free surface. Because of the molecular energy, which break away the liquid molecule and enter the air space and enter in the air space in the vapor state. Next line. After some time, air will contain enough liquid molecule liquid molecule to exert a partial pressure to exert a partial pressure of air. This partial pressure
is forcing, this partial pressure is forcing the molecules to join the liquid surface comma eventually equilibrium established means rate of leaving of molecules from the liquid surface and rate of return of liquid molecule. Full stop. In this situation, air above the liquid is saturated and the pressure exerted on the liquid surface is called vapor pressure. Is called vapor pressure. Mercury, write down, mercury is suitable for manometry. Mercury is suitable for manometry because of its lower pressure, because of its lower vapor pressure, because of its lower vapor pressure and higher density. And higher density. And higher density.
यहां से लेट वी प्रोसीड फॉर आवर नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर एक डोमिनेटिंग चैप्टर है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। काफी कुछ यहां से एग्जामिनेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। नाउ लेट वी प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सॉरी, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। चैप्टर 2, pressure and its measurement. Pressure and its measurement. Also called as manometry. Also called as मैनोमेट्री। अरशद ये पूछ रहे हैं कि सर ट्रैकिंग पे जाते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वहाँ राइस अच्छे से पकता नहीं, ऐसा क्यों? अब बेटा आप राइस कुकर में पका रहे हैं कि ओपन, दैट इज माय क्वेश्चन, ओके, बट एनी हाउ उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। हम अपने एग्जाम पर फोकस रहें तो बेटर है। ठीक है, किस तरीके का मैकेनिकल अरेंजमेंट आपने रखा हुआ है ये मुझे देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर विल बी रिक्वायर्ड, हायर प्रेशर विल बी रिक्वायर्ड एट हाइट यू मे हैव, इफ यू आर हैविंग ओपन सिस्टम, सो atmospheric pressure will be lower, and that's what we are going to discuss in this particular chapter is what pressure. And first thing, what do you understand by the term pressure? प्रेशर से आप क्या समझते हैं मुझे ये बताइए। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर? व्हाट यू मीन बाय द प्रेशर एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर? What do you understand by the pressure and what is the unit of the pressure? Anyone? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। इट इज द नॉर्मल फोर्स acting per unit area. Normal force. It is the normal force acting per unit area. Okay? Yes. ठीक है, ठीक है, जरा सुनिएगा भाना मेरी बातें बस। It is the normal force. किसी ने बोला फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल फोर्स, नो टेंजेंशियल। इफ एनी अमाउंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स और शियर फोर्स मे बी देयर, देन द फ्लूइड विल नॉट बी इन द रेस्ट। नॉर्मल फोर्स की ही बात कर रहा हूं, और सिर्फ नॉर्मल फोर्स लग रहा है इफ ओनली normal force is there, then we can say fluid is at rest. नॉर्मल से थोड़ा भी डेविएट किए तो उसके कंपोनेंट्स आएंगे, यस और नो।
दैट इज योर व्हाट नॉर्मल फोर्स। अभी मैं बोलता हूं इंक्लाइंड वन है तो इसके कंपोनेंट नॉर्मल एंड शियर, तो जैसे ही शियर आएगा फ्लूइड इज नॉट इन रेस्ट, fluid is not in rest means in dynamic condition, and in that dynamic condition viscosity comes in action, viscosity comes in action। अभी जो नेक्स्ट 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं that is your what, fluid is rest, that is your what, static condition। तो यहां कहीं पर भी आपको विस्कोसिटी देखने को नहीं मिलेगा, यहां कहीं पर भी आपको विस्कोसिटी देखने को नहीं मिलेगा। ओके, दैट इज योर व्हाट, रिजल्टेंट फोर्स। ओके, नॉर्मल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट, and here that is your what, resultant force, normal only, resultant force normal only, normal only है तो फ्लूइड किस में रहेगा, रेस्ट में। और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्टैटिक, और यही हमारे नेक्स्ट 3 चैप्टर हैं। फ्लूइड विल बी एट द रेस्ट ओनली। जैसे ही शियर फोर्स एक्शन में आया वहां पर डायनेमिक कंडीशन आ जाएगी एंड लेयर के ऊपर में लेयर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, एंड एट दैट टाइम विस्कोसिटी, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, डायनेमिक विस्कोसिटी कम्स इन एक्शन। क्या ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई है? एंड द यूनिट ऑफ द प्रेशर, एंड द यूनिट ऑफ द प्रेशर इज व्हाट, यूनिट ऑफ द प्रेशर, unit of the pressure, unit of the pressure is what, Newton per meter square, or what we can call it as Pascal। क्यों पास्कल बोल रहे हैं ये भी हम थोड़ी देर में देख लेंगे, क्यों पास्कल बोल रहे हैं। पास्कल्स लॉ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। Write down heading pressure and write down under it. Write down heading pressure and write down under it. I'll dictate, okay? और यहाँ बोर्ड से क्या लेना है वो भी मैं रास्ता बताऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ I'll dictate, then I'll give you the direction, okay? Please read. It is a normal force, प्रेशर के अंडर में लिखेंगे, इट इज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, a fluid is said to be in rest, a fluid is said to be in rest a fluid is said to be in rest a fluid is said to be in rest if there is no relative motion between adjacent layer, if there is no relative motion between adjacent layers, means no shear stress, means no shear stress. If shear stress is there,
not be in rest, if shear stress is there, fluid will not be in rest, and dynamic condition arises. Hence, viscosity comes in action. Viscosity comes in action. The unit of the pressure, the unit of the pressure is Newton per meter square or Pascal. The unit of the pressure is Newton per meter square or also called as Pascal. And now whatever you want to take from this screen as soon as possible within a 30 seconds, whatever. ठीक है? Yerra Sai Kumar, wait for it. Okay, I'll discuss. Pascal's law ne dijiye, okay? Yerra Sai Kumar, wait for the Pascal's law that I'll discuss, okay? Within a 10 minutes, I think so. Now, draw the Mohr circle. Draw the Mohr's circle, and given condition is that fluid is rest. Given condition is that fluid is at rest. There is no shear stress. There is no shear stress. Sigma, or what we can call as pressure, okay, and that is your what, tau. Shear stress is 0. Shear stress is what, beta? 0. Shear stress is what, beta? 0. Normal stress, that what we can call it as pressure now. And when the fluid is at rest, that Mohr circle means tau is equal to 0, and by the Pascal's law, pressure at a point from all direction will be same.
pressure at a point in all direction will be same and it's always acts normal to the surface. पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? जो प्रेशर है वो हमेशा लंबवत नॉर्मल एक्ट करेगा सरफेस पर, ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस एंड विल बी इक्वल फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन. सभी डायरेक्शन से सेम होगा एट ए पॉइंट एंड ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस. तो मोहर सर्कल किसी बॉडी को मैंने कंसिडर किया और उसके लिए मैं मोहर सर्कल बनाने के लिए बोल रहा हूं फ्लूइड इज एट रेस्ट. तो जो प्रेशर एक्ट कर रहा है सभी डायरेक्शन से सेम है एंड फ्लूइड इज एट रेस्ट मींस नो शियर स्ट्रेस. प्रेशर सभी डायरेक्शन से क्या आ रहा है बेटा? सेम आ रहा है. सो मोहर सर्कल क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा. फॉर द फ्लूइड इज एट रेस्ट, मोहर सर्कल क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि सभी डायरेक्शन से जो प्रेशर आ रहा है वो सेम आ रहा है. प्रेशर मींस व्हाट? कंप्रेसिव स्ट्रेस. दैट इज व्हाई इन this direction, that is why it is in this direction. Pressure at a point will be same from all direction and always acts normal to the surface. That is your what? By Pascal's law. And now unit of the pressure is what? Newton per meter square. So my question is that pressure is vector quantity or scalar quantity? Pressure is scalar quantity or vector quantity? Pressure is scalar quantity or vector quantity? Pressure is a scalar quantity or vector quantity? कुछ स्टूडेंट्स स्केलर बोल रहे हैं, कुछ वेक्टर बोल रहे हैं. ज्यादातर आंसर मुझे स्केलर के मिल रहे हैं. गुड तेजा, श्वेता, अभिषेक, यस, सूरज वेक्टर, विशाल साहू वेक्टर, चंदन वेक्टर, संदीप स्केलर, शुभश्री स्केलर. ठीक है. प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी. प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज जो डायरेक्शन है वो पास्कल्स लॉ से फिक्स हो गया है. ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस. ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस. तो डायरेक्शन तो क्या हो गया बेटा? यहां पर फिक्स हो गया. समझ में आया? जब डायरेक्शन फिक्स हो गया, डायरेक्शन की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है. यस और नो? अब मुझे क्या चाहिए? प्लस है, माइनस है, दैट्स इट. दैट्स व्हाट प्रेशर इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी. हाँ, फोर्स होता तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट है, वो वेक्टर होता है. इसलिए आपको लग रहा होगा न्यूटन है तो वेक्टर है, बट डायरेक्शन फिक्स है. दैट इज व्हाई इट इज योर स्केलर क्वांटिटी. नाउ स्ट्रेस इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? आप लोगों ने सोम कंप्लीट किया है.
scalar, vector, or which type of quantity stress is? Which type of quantity stress is? Yes, good Prince. Which type of quantity stress is? Siddharth wrong. Teja wrong. Nur Sabha correct. Vyom Mishra correct. Shivam correct. Wrong. Katit Modi wrong again. दो आंसर wrong दिए आपने. Subhashri wrong. Arshad yes correct. Exactly correct. Second order. Yes, Suraj correct. Stress is what? It is tensor quantity. Stress is what? Tensor quantity. Tensor quantity in the sense, let me give you the state of stress, and now that is your what? Normal stress, sigma xx. Now tau xy, tau yx, sigma yy. So that sigma xx or tau xy or tau yx, whatever, that is your what? X phase, x direction. Normal stress, x phase, x direction, x phase, y direction, x phase, y direction. Getting me or not? X phase, x direction, x phase, y direction. Shear stress, x phase, x direction, normal stress. जब कभी भी आपको एक फेस की रिक्वायरमेंट या प्लेन की रिक्वायरमेंट आती है, that quantity is known as tensor quantity. So stress is what? Tensor quantity. Stress is what? Tensor quantity. समझ में आया कि नहीं आया इतना? इसके लिए आपको मोहर सर्कल मिलेगा. Otherwise, pressure at a point, fluid is at rest, that will be your what point. Now let you take this from the board, whatever that you want. Okay, then I'll give you the Pascal's law. Whatever that you want to take from the board, let you take, then I'll give you the Pascal's law. Abhishek. Take this as soon as possible.